الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رشتہ زوجیت یعنی میاں بیوی کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے جو دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان وجود میں آنے والا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی اہمیت کو بتانے کے لیے بات ہی کافی ہے کہ ہم انسانوں کے اندر اور دنیا کے اندر وجود میں آنے والے سب سے پہلے جو دو انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کے درمیان جو رشتہ ہوا وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اسی وجہ سے اس رشتے کے جو تقاضے ہیں، اس رشتے کے درمیان جو حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ہمارے اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بہت ہی نازک رشتہ ہوتا ہے۔ معمولی سی بات پر اگر اس رشتے کے درمیان درار پیدا ہو گئی تو یقیناً یہ رشتہ بہت ساری خرابیوں، بہت ساری پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے میاں بیوی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ہر ایک کے لیے لازم ہے، کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتوں کو سمجھیں گے، ان کو ادا کریں گے، تو اس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا گھر اور اس کا ماحول بالکل پرسکون ماحول ہوگا۔ ہمارے گھروں کے اندر امن و شانتی ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں آئیں گی۔ لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھتے، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، تو یقیناً اس کی وجہ سے ان کے درمیان کہیں نہ کہیں تکرار پیدا ہوگی، ان کے رشتے کے درمیان درار پیدا ہوگی، اور اس کے وجہ سے ہمارے اور آپ کے گھرانوں میں، ہمارے گھر کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، خاندانوں کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے۔ اور جب میاں بیوی کے رشتے کے درمیان تکرار آ جائے، میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو، تو اس کا اثر صرف ہمارے اور آپ کے اوپر یا صرف میاں بیوی کے اوپر نہیں پڑتا، بلکہ گھر کے اوپر، خاندان کے اوپر، آنے والی نسلوں تک اس کا اثر پہنچ سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اولاد کی تربیت کرنا ممکن نہیں ہوتا، اولاد کی تربیت میں کہیں کمی رہ جاتی ہے، اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر اولاد کی تربیت میں کمی رہ جائے تو اولاد کا مستقبل خراب ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ، تمام مرد عورت، تمام میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور ان کی ادائیگی کریں۔ اپنے رشتے کے درمیان شیطان کو کبھی بھی حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد اور اس کا گول یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر نکلتا ہے، لوگوں کے درمیان نکلتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرائے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر اختلافات ہو گئے تو بہت سارے گناہ، بہت ساری برائیاں اپنے آپ پیدا ہو جائیں گی، اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابلیس اپنا عرش لگاتا ہے، اپنا دربار شروع کرتا ہے، تو اپنے چیلوں میں اور شیطانوں میں اس شیطان کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، اس شیطان کو عزت اور وقار دیتا ہے جو شیطان جا کر کے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف کرا دیا جائے بہت سارے گناہ اپنے آپ جنم لیں گے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے اور ان کو ادا کرے، اور اس کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور کوئی غفلت نہ برتے۔ شریعت اسلامیہ نے میاں بیوی کے سامنے ان کے حقوق کو واضح کیا ہے، تو آئیے کچھ حقوق کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت اسلامیہ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا رویہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اس کے معاملات اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں، وہ اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جن کے معاملات ان کی بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، وہ باہر دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑی ہنسی خوشی ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑھیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کا کردار اچھا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر سے جا کر کے اپنے گھر کے اندر پہنچتے ہیں ان کا پورا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، بیویوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے، تم میں باکردار اور بااخلاق انسان وہ ہے جس کا اخلاق اور اس کا کردار اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔
अगर हम और आप दुनिया के सामने कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हमारा अखलाक, हमारा किरदार, लोग हमारे अखलाक और किरदार की गवाही क्यों ना देते हो, लेकिन अगर हमारा मामला हमारी बीवियों के साथ अच्छा नहीं है तो हम और आप अच्छा इंसान कहलाने के हकदार नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, व अना खैरुकुम लि अहली, और मैं बीवी के साथ मामला करने में तुम में सबसे बेहतर हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए इस मामले में बेहतरीन नमूना है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, जाने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला उनकी बीवियों के साथ कैसा था, उनके साथ उनका रवैया कैसा था, उनके मामलात कैसे थे। उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसी मजाक भी किया करते हैं, तमाम तरह की तफरीहात भी किया करते थे। तो ये हक बनता है बीवी का शौहर पर कि शौहर अपनी बीवी के साथ अच्छा मामला करे। इसी तरह बीवी का एक हक और शौहर पर यह बनता है कि अगर बीवी के अंदर किसी तरह की कोई मामूली सी कोताही हो, कोई कमी हो, तो शौहर को चाहिए कि उस कमी को नजरअंदाज करते हुए, उसके एहसासात को समझते हुए, सब्र करते हुए अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजारने की कोशिश करे, क्योंकि औरत की फितरत यह है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी बाकी रहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों अपने बीवियों के साथ अच्छा मामला करने के मामले में मेरी वसीयत को कबूल करो। मेरी वसीयत है तुम्हें कि तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा मामला करो और मेरी इस वसीयत को कबूल करो। क्यों? फ़इन्नल मरअत खुलिक़त मिनज़ ज़िला, क्योंकि यह औरत पिसली से पैदा की गई है, और पसली की हड्डी जो होती है उसकी खुसूसियत हम और आप जानते हैं कि वो टेढ़ी होती है, और अगर हम और आप उसे सीधा करने की कोशिश करें तो वो सीधी नहीं होती। हम ज्यादा जोर लगाएं वो टूट सकती है वो हड्डी, लेकिन वो सीधी नहीं होती है। इसी वजह से औरत के अंदर भी ये फितरत पाई जाती है, उसकी तख्लीक की वजह से फितरत के अंदर उसके शामिल है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी, टेढ़ापन मौजूद होगा। इसी वजह से हम और आप देखते हैं कि औरतें मामूली चीजों पर नाराज हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, ये उनके फितरत के अंदर शामिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ऐसी मामूली कमियां उनके अंदर मौजूद हैं जो नजरअंदाज करने के काबिल हैं, तो आप नजरअंदाज कर जाएं, उनके एहसास को समझें और उनको एक समझते हुए जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम और आप उन्हें चाहें कि वो एकदम से सुधर जाएं, एकदम ही सीधी हो जाएं, तो कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। हर इंसान में कहीं ना कहीं कमी मौजूद होती है, और औरत तो फिर भी फितरी तौर पर उसके अंदर कजी और कमी मौजूद है। तो हम और आप उसको समझें और उसके साथ उसके एहसासात को समझते हुए जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, ये उसका हक बनता है। इसी तरह औरत का हक एक और बनता है कि मर्द उसके नानो नफ़क़े का जिम्मेदार है, उसके खाने पीने का जिम्मेदार है, उसके पहनने का जिम्मेदार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था कि तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक ये है कि तुम उनके खाने पीने और उनके पहनने का सामान मुहैया करो। ये मर्द का हक बनता है कि वो अपनी बीवियों के नानो नफ़क़े की जिम्मेदारी उठाए, उसके खर्चे की जिम्मेदारी उठाए, जो उसके जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करे, जो जायज़ इखराजात हैं उनको पूरा करे। ये मर्द की जिम्मेदारी है। एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, बीवी का मेरे ऊपर क्या हक बनता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुतिमुहा इज़ा तइमता, कि जब तुम खाओ तो अपनी बीवी को भी खिलाओ। कसौतुहा इज़ा तसैता, तुम पहने तो अपनी बीवी को भी कपड़ा पहनाओ। यानी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह हम और आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी बीवियों पर भी खर्च करें। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे माशरे में हैं कि खुद तो जाकर के बाहर दोस्तों के साथ घूमते हैं, दोस्तों के साथ पार्टियां करना, खाना पीना, तमाम तरह के अखराजात जो अपने ऊपर करने हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जब मामला घरवाली के ऊपर आता है, बीवी के ऊपर आता है, खर्च करने की बारी आती है, उसके जायज ख्वाहिशात को पूरी करने की बारी आती है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ तंग पड़ जाते हैं, वो उन पर खर्च करने की नहीं सोचते, पीछे हटते हैं। तो ये हमारा और आपका हम पर हक बनता है, हर मर्द पर हक बनता है कि वो अपनी बीवी के जायज ख्वाहिशात को पूरी करे, जायज इखराजात को उठाए, उसके खाने पीने का इंतजाम करे, उसके पहनने का इंतजाम करे। ये हर बीवी का उसके शौहर पर हक है जिसकी अदायगी शौहर के लिए जरूरी है। तो ये कुछ हुकूक हैं जो मर्द पर आयद होते हैं जिनकी अदायगी करना जरूरी है। आइए कुछ ऐसे हुकूक को भी जानते हैं जो औरत पर लाजिम है, जिनकी अदायगी औरतों के लिए जरूरी है। मर्द का औरत पर सबसे पहला तो यह है कि उसकी बीवी उर्फ के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक उसकी खिदमत करने वाली, उसके खिदमत में किसी तरह की कोताही ना करने वाली हो। जैसा कि आज माशरा जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, औरतों के अंदर से ये चीज़ खत्म होती जा रही है। शौहर की खिदमत करना, कहीं ना कहीं उनके अंदर इस चीज़ की कमी आती जा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनके खाविद, उनके शौहर के बारे में सवाल किया और साथ में कहा, फंजुरी ऐना अंती मिन्हु, तुम देख लो अपने शौहर के मामले में कि तुम कहां मौजूद हो, तुम्हारा मामला अपने शौहर के साथ कैसा है। फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुक, क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारी जहन्नम भी है।
अगर तुम अपने शौहर की खिदमत करती हो तो तुम जन्नत को अपना ठिकाना बना लोगी, लेकिन अगर तुमने अपने शौहर की खिदमत नहीं की, उसमें कोताही की, तो तुम्हारा ठिकाना यकीनन जहन्नम होगा। तो शौहर का बीवी पर पहला हक यह है कि बीवी उसकी खिदमत गुजार हो। इसी तरह दूसरा हक यह है कि औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, उसकी इताअत करे, उसकी बातों को माने। कोई भी हुक्म अगर शौहर देता है तो बीवी के लिए जरूरी होता है कि वो उस बात को माने, बशर्ते कि शौहर किसी गुनाह का हुक्म ना दे रहा हो। अगर शौहर किसी गुनाह का हुक्म देता है तो वहां बीवी के लिए इताअत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर गुनाह का हुक्म नहीं देता तो किसी भी औरत के लिए जायज और दुरुस्त नहीं हो सकता कि वो अपने शौहर की नाफरमानी करे, क्योंकि शौहर की नाफरमानी करना औरत के लिए बहुत बड़े खसारे का जरिया बन सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से फरमाया कि दो लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सर से ऊपर नहीं जाती, यानी उनकी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कबूल नहीं होती है। एक वो आदमी, एक वो गुलाम जो अपने मालिक के पास से भाग जाए यहां तक कि वो वापस लौट करके आए। दूसरी वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करती हो। गर्ज है कि अगर कोई औरत अपने शौहर की नाफरमान है, उसकी बातों को नहीं मानती, तो उसकी नमाजें अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता जब तक कि औरत तौबा ना कर ले और अपने शौहर की फरमाबरदार ना बन जाए। या इसलिए हर औरत के लिए ज़रूरी है कि अपने शौहर की फरमाबरदार बन करके रहे, उसके अहकाम की, उसके हुक्मों को माने, उसकी बातों की तामील करे, उसके अहकाम से हुक्म अदूली हरगिज़ ना करे। इसी तरह शौहर का एक हक़ ये भी बनता है कि औरत हर हाल में अपने शौहर की शुक्रगुजार हो, हालात कैसे भी हों। बस औकात इंसान की ज़िंदगी में हालात मुश्किल हो सकते हैं, इंसान परेशानी के आलम में आ सकता है। यह भी मुमकिन हो सकता है कि औरत के जो इखराजात हैं उनको पूरी करने में मर्द को मशक्क़तें आए। ऐसी हालत में भी औरत के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता कि वो अपने शौहर की नाशुक्री करे, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करना ये हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है और ये जहन्नम में ले जाने वाला औरतों का सबसे बड़ा सबब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जहन्नम का दीदार कराया गया तो मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर औरतों की तादाद सबसे ज्यादा थी, और उसकी वजह यह थी कि औरत अपने शौहरों की नाशुक्री करती थी। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की फितरत ऐसी है कि अगर आप उसके साथ पूरी जिंदगी एहसानात करते रहें, उसके साथ अच्छा सुलूक करते रहें, और अगर आपकी तरफ से कहीं कोई कमी हो गई, कोई कोताही हो गई, तो तमाम एहसानात को भुला देती है। यह उसकी फितरत है। लिहाजा हर औरत को चाहिए कि अपने अंदर से मौजूद इस खामी को ख़त्म करे, अपने शौहर की शुक्रगुजारी करे तमाम मामलात में, ख्वाह वो हालात कैसे भी हो। फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी का हाल तो यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया था कि अगर गैरुल्लाह को सजदा करना जायज़ होता, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ होता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। यकीनन शौहर का मकाम, उसकी इज्जत, उसकी हैसियत एक बीवी के जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा है। इसलिए हर औरत के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शौहर की शुक्रगुजार बने, उसकी फरमाबरदार बने। इसी तरह औरत पर एक और हक शौहर का ये बनता है कि औरत अपने शौहर के माल और उसके जायदाद की हिफाजत की जिम्मेदार है। शौहर का जो भी माल है उसके घर के अंदर या कहीं भी, उन तमाम मालों की हिफाजत औरत की जिम्मेदारी है। औरत के लिए कहीं भी जायज़ और दुरुस्त नहीं कि शौहर के माल को उसकी इजाज़त के बगैर कहीं भी खर्च करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था, अबू उमामा बाहिली की रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी औरत के लिए जायज़ नहीं कि अपने शौहर के घर में से किसी भी सामान को उसकी इजाज़त के बगैर खर्च करे। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या वो खाना भी नहीं दे सकती? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना तो हमारा बेहतरीन माल है। यानी किसी औरत के लिए यह भी जायज़ नहीं है कि अपने शौहर की इजाज़त के बगैर किसी दूसरे इंसान को खाना दे, किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को, किसी को भी शौहर के माल में से उसकी इजाज़त के बगैर कोई खर्च और कोई तसर्रुफ औरत के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर शौहर इस बात की इजाज़त देता है, या हमारे और आपके यहाँ ये उर्फ आम है कि शौहरों की तरफ से इजाज़त होती है, गरीबों में, मिस्कीनों में खिला सकते हैं या किसी को भी कोई चीज़ दे सकते हैं, इजाज़त शामिल है, तो औरत के लिए जायज़ हो सकता है, वरना जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता। हमारा मामला ये है, हमारे माशरे का मामला ये है कि इजाज़त लेना तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे माशरा इस कदर बिगड़ गया है कि आदमी बाहर जाकर के कमाए, परेशानियां उठाए, मशक्क़तें उठाए, दर दर की ठोकरें खा करके वो माल कमाता है, और औरतें उसे खर्च करने में बेदरेक खर्च करती हैं, तसर्रुफात करती हैं, फजूल खर्चियां करती हैं।
किसी भी औरत के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता कि वो अपने शौहर के माल को बगैर इजाज़त के खर्च करे। हाँ, मसला अगर ये है कि शौहर बखील है, कंजूस है, उसके जो जायज़ इखराजात हैं उन इखराजात को पूरा नहीं करता, बीवी की ज़रूरियात हैं जो जायज़ हैं उनको पूरी नहीं करता, तब वहाँ शरीयत ने बीवी को इस बात की इजाज़त दी है कि बगैर इजाज़त के अपने शौहर के माल में से कुछ हिस्सा ले सकती है। लेकिन यहाँ भी शर्त लगाई है कि सिर्फ उतना ही माल लेगी जितना उसको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, फजूल खर्ची करने के लिए नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना माल वो ले सकती है। तो ये चौथा हक बनता है शौहर का बीवी पर, जिसकी अदायगी औरत के लिए ज़रूरी है। तो ये हुकूक है जिनकी अदायगी शौहर के लिए भी ज़रूरी है, औरत के लिए भी ज़रूरी है। एक आखिरी हक बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि मियाँ और बीवी के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को अल्लाह उसके रसूल की इताअत पर उभारें। ये दोनों के पर हक बनता है, ये मुश्तरका हक है, किसी एक का हक नहीं। बीवी के लिए भी जरूरी है कि वो अपने शौहर को अल्लाह उसके रसूल के करीब करे, और शौहर का भी हक बनता है कि अपनी बीवी को अल्लाह उसके रसूल के अहकामात जो हैं उसका पाबंद बनाए। हमारे यहाँ मामला क्या है कि हम और आप इफरात व तफरीद के शिकार हैं। या तो अपनी बीवियों पर इतने सख्त हो जाते हैं कि उसकी मामूली सी गलती हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। या हमारा मामला ये होता है कि हम उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि तमाम तर छूट दे करके रखते हैं, ख्वाह वो कितनी भी गलतियां करे, कितनी भी नाफरमानियां करे, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की हुक्म अदूली करे, हम और आप उसे कुछ नहीं कहते। हमारे मुआशरे के अंदर चीज़ आम है। हम और आप देखें, हम में से कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, 5 वक्ता नमाजी है, उनकी औरतें नमाजों से गाफिल हैं लेकिन वो अपनी औरतों को कभी हुक्म नहीं देते। कितनी औरतें ऐसी हैं जो नमाजों का एहतमाम करते हैं लेकिन उनके शौहर इससे गाफिल हैं, अपने शौहरों को इस चीज़ का हुक्म नहीं देती। हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि तमाम तर अहकामात जो शरीयत के हैं, अगर उनमें से कोई भी उसमें कोताही करता है तो दूसरे के लिए ज़रूरी है कि उस पर निशानदही करे, उसे समझाए, उसे बतलाए। हम और आप ये ना समझें कि हम मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनसे कुछ ना कहें। शरीयत ने हमें उसके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, यकीनन अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, लेकिन वहीं शरीयत ने यह भी कहा है कि अगर तुम्हारी औरतें गलतियां करती हैं तो उन्हें सजा भी देना है। उसका तरीका बतलाया कि अगर तुम्हारी औरत कोई गलत काम करती है, कोई गलती करती है तो पहले उसे समझाओ, नहीं समझती उसके बिस्तर को अलग कर दो, उस पर भी नहीं समझती है तो उसे मारो। शरीयत ने यहां तक हमें और आपको इजाजत दी है। इससे पता चलता है कि जहां हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम और आप उसकी मामूली जो गलतियां हैं जो नजरअंदाज की जा सकती हैं उसे नजरअंदाज करें, वहीं यह भी जरूरी है कि जो गलतियां जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियां हैं उस पर हम और आप उन्हें टोके। आज हमारे मुआशरे के अंदर औरतों का मामला कितना आगे बढ़ गया है कि औरतों के यहाँ पर्दों का इंतजाम नहीं है। हमारे यहाँ मर्दों का ये मामला है कि अपने औरतों पर इस बात पर नहीं टोकते, अपने औरतों को हिजाब का और जो पर्दा है उसका एहतमाम करने का हुक्म नहीं देते। हमारे यहाँ ये बड़ी कोताही है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों का एहतमाम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करे उस बंदे पर जो रात को उठ करके 2 रकात नमाज अदा करता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी नहीं उठती तो उसके चेहरे पर पानी का छींटा मार करके उसे जगाता है। रहम करे उस औरत पर जो रात को उठ करके 2 रकात नमाज अदा करती है, अपने शौहर को जगाती है, शौहर नहीं उठता तो पानी के छींटे मार करके उसे जगाती है। गोया कि इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये तालीम दी है कि हर मर्द अपनी बीवी को और हर बीवी अपने शौहर को अल्लाह उसके रसूल के अहकामात का पाबंद बनाए। किसी भी तरह के अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त ना करे। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप तमाम मुसलमान जो मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं उन्हें समझें और उन्हें अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम और आप इसमें कोताही करेंगे तो यकीनन हम और आप बहुत बड़े नुकसान को उठाने वाले होंगे। हमारे घरों के अंदर से अमन चैन ख़त्म होगा, हमारे दरमियान अख्तलाफात पैदा होंगे, हमारे रिश्ते में दरार पैदा होगी, हमारे रिश्ते टूट सकते हैं, ख़ानदान के अंदर अख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, बेशुमार बुराइयाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के हुकूक को समझे और उन्हें अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के हुकूक को समझने और उसे अदा करने की तौफीक अता फरमाए।